السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سفر کن بائی علیزہ آیت پارٹ 11۔ مقدم بیڈ پر بیٹھا بغور علیزہ کی جانب دیکھ رہا تھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی اور ساتھ میں پٹک پٹک کر کے چیزیں رکھ رہی تھی، جیسے وہ مقدم کا سارا غصہ ان چیزوں پر اتار رہی ہو۔ بیگم، آپ کا شوہر یہیں پر موجود ہے، اس کا غصہ اسی پر اتار لو، ان بے جان چیزوں کا کیا قصور؟ مقدم اٹھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے قریب آئے نا تو قسم سے میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی خطرناک حد تک غصے سے بولی، مت چھوڑو میری جان، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی مت چھوڑو۔ مقدم ایک ہی جس میں اس تک پہنچ چکا تھا، ویسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیگم غصے میں اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ مقدم اس کے گالوں پر چھائی لالی کی طرف دیکھتا اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ میر نہیں کرے پلیز، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی بے بسی سے بولی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس کے قریب آتے مقدم اس پر ایسا کون سا جادو پھونکتا ہے جو وہ اس کے سحر میں جکڑ جاتی ہے۔ تم میری زندگی کو روشن کرنے والا نور ہو، تم میرے لیے اللہ کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہو۔ مقدم علیزہ سے بولتا اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ گیا تو علیزہ مسکرا دی۔ بس اتنا سا تھا مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بس اتنا سا تھا غصہ؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے چمکتی آنکھوں سے بولا، آپ بہت برے ہیں۔ علیزہ مقدم کے بازو پر ایک مکہ رسید کرتے ہوئے بولی تو مقدم کا خوبصورت کہا کمرے میں گونجا۔ چلے بھی، سب انتظار کر رہے ہیں۔ علیزہ اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی مقدم کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چلتی۔ آگے سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ان سب کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں سے علیزہ اور مقدم اترتے آ رہے تھے۔ علیزہ ڈیپ ریڈ کلر کی ڈریس میں جبکہ مقدم بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، براؤن اجرک کندھوں پر ڈالے، اپنی بھرپور وجاہت اور خوبصورتی لیے علیزہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ سب نے دیکھتے ہی بے ساختہ ماشاء اللہ بولا، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر بیٹھی صبا انگارے چباتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہے تو کیوں ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی علیزہ کو مقدم سے الگ کرے، اٹھا کر اس حویلی سے باہر پھینک دے۔ السلام علیکم، انہوں نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسے ہو؟ آمنہ بیگم اور سردار صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے ہم اپنی بیٹی سے ملے اور پھر داماد سے، اور انہیں ڈھیروں دعائیں دیں، اور اب ان دونوں سے علیزہ کے بھائی مل رہے تھے۔ اس کے بعد مریم اور عائشہ ملی۔ مقدم جا کر زید کے ساتھ بیٹھ گیا اور علیزہ عاصم کے ساتھ۔ یہ تو شروع سے ہی طے تھا کہ وہ اپنے اس بھائی کی دیوانی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی وہ سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں اپنے قریب سے جہان زیب کی آواز سنائی دی۔ سب نے نظریں اٹھا کر جہان زیب کی طرف دیکھا جو افرا کا ہاتھ تھامے ان کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچوں؟ سردار صاحب اور آمنہ بیگم ان دونوں سے بھی بالکل اپنے بچوں کی طرح ملے، اور کچھ ہی دیر میں پورے لاؤنج میں باتوں اور کہے گونج رہے تھے۔ بی جان خوش ہوتی اپنے گھر کی رونقوں کو جان نثار نظروں سے دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک ان کی زندگیوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و آباد رکھے اور انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی خوش رکھے۔ اب آگے کھانا کھانے کے بعد ہی مقدم کسی کام کا بول کر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے کام میں بڑی بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ ایس پی کا قتل اور پھر باقی غائب ہوئے خاور کے آدمیوں کی خبر خاور تک پہنچ چکی تھی، اور اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے مقدم کی فیکٹری میں آگ لگوائی تھی۔ آگ کو زیادہ بھڑکنے سے پہلے ہی کنٹرول کر لیا گیا تھا، مگر مقدم حویلی میں بغیر کسی کو بتائے ہی شہر آ چکا تھا، جبکہ فیکٹری میں آگ لگوانے کے پیچھے بھی خاور کی ایک چال تھی جو اس نے بہت مہارت سے چلی تھی۔ مقدم کو دوسری جانب مصروف کر کے اپنا کام کروا لینا چاہتا تھا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے 10 سے 15 لوگ زخمی ہو چکے تھے، جن کی فکر میں ہی مقدم حویلی سے شہر چلا گیا تھا بغیر کسی کو بتائے۔ اسے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں سے کتنی محبت ہے اور ان کی کتنی فکر ہے۔ ساری رات گزرنے کے بعد بھی مقدم گھر واپس نہیں لوٹا تھا، جبکہ علیزہ ساری رات بھی غنودگی میں ہی رہی تھی۔ اس کے سر سے اس چیز کا اثر اترا ہی نہیں تھا جو صبا نے کافی میں ملائی تھی۔ علیزہ اپنا بھاری سر سنبھالتی ہوئی اٹھی اور وہ مشکل سے آنکھیں کھولتی سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اپنے
दाएं अपने बाएं जानिब देखा जहां पर मुकद्दम मौजूद नहीं था। उसकी साइड पर तो ज़रा सी चादर या कंबल भी नहीं हिला था, मतलब वो सारी रात ही कमरे में नहीं आया था। उफ अल्लाह, ये क्या हो गया है मुझे, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। अलीज़ा खुद से बोलती उठी और फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सुबह सुबह का वक्त था। सिमरा बेगम किचन में मौजूद थी और अफरा भी उनके साथ ही थी। बीजान, जहांजेब आलम साहब और रफ़ीक साहब बाहर नाश्ते की टेबल पर नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। बीजान ने अफरा को आवाज़ दी और बोला कि अलीज़ा को बुला लाए, क्योंकि इतना तो उन्हें भी मालूम हो चुका था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है कल से। अफरा अलीज़ा के कमरे में दाखिल हुई तो देखा अलीज़ा फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी, शायद वो किसी को कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी है अब आपकी तबीयत? अब अफरा ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ फरी, अब बेहतर है तबीयत। तबीयत, अलीज़ा भी मुस्कुराकर बोली, जबकि हकीकत तो ये थी कि उसका सर दर्द से फट रहा था और आंखें अब भी बंद हो रही थी, जिसे बहुत मुश्किल से उसने खोल कर रखा हुआ था। सुबह सुबह किसे फ़ोन कर रही है, खैर तो है? अफरा अलीज़ा की जानिब देखते बोली। हाँ, तुम्हारे भाई को फ़ोन कर रही थी, शायद वो रात को वापस नहीं आए, इसलिए अलीज़ा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तो आपकी बात नहीं हुई भाई से? अफरा ने अगला सवाल किया। नहीं, फ़ोन बन जा रहा है, अलीज़ा अपना फ़ोन साइड पर रखती हुई बोली। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, भाई अक्सर लेट हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। चले आइए, बीजा नाश्ते पर बुला रही है। अच्छा चलो, अलीज़ा बोलती उठ खड़ी हुई और अफरा के साथ कदम बाहर की जानिब बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा ने सबकी तरफ देखते हुए मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? बीजान अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली थी, जो आज कुछ कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही थी। ठीक हूँ बीजान, अब बेहतर है। अलीज़ा अब अपनी तकलीफ़ छुपाती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर के पास चली जाओ बेटा, मुझे तुम आज बहुत कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही हो। रज़िया बेगम अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली। नहीं मामा जान, मैं ठीक हूँ, आप सब फिक्र मत करिए। अलीज़ा सबकी तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, जबकि जहांज़ेब को उसकी आंखों में तकलीफ की झलक दिखाई दे रही थी, मगर वो सर झटकता नजर झुका गया। सबा कहानियाँ सबा कहाँ है? फरी आई नहीं नाश्ते पर? सिमरा बेगम ने अफरा से पूछा। मैं आ गई हूँ खाला जान। समा मुस्कुराती हुई अपनी कुर्सी पर आ बैठी और नाश्ता करने लगी, जबकि बीजान को उसकी ये हरकत नागवार गुजरी थी। ना तो उसने किसी बड़े का अदब किया और ना सलाम किया, बल्कि अपनी ही धुन में आकर नाश्ता करने लगी। सबा ने नाश्ता करते नजर उठाकर अलीज़ा की तरफ देखा। वो उसे निढाल सी लगी तो उसे देखते वो मुस्कुराई। जी लो जी लो कुछ पल अलीज़ा बीबी, फिर तुम्हें कुछ भी नसीब नहीं होगा, ना ये हवेली के लोग और ना ही मुकद्दम मीर अहमद। सबा दिल ही दिल में खुद से बोलती बेतहाशा खुश हो रही थी। खाला जान, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए थी। सबा सिमरा बेगम की तरफ देखते हुए बोली। किस चीज़ की इजाज़त बेटा? सिमरा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो खाला जान, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, मगर मैं गांव घूमने ही नहीं गई। आज अफरा और मैं चलते हैं साथ, अलीज़ा को भी लेकर जाएंगे। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बाहर ताज़ा हवा खाएगी तो कुछ बेहतर हो जाएगी। क्या हम जा सकते हैं? सबा सिमरा बेगम की तरफ देखते मुस्कुराकर बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग चली जाना, कोई मसला नहीं है। हमारा अपना गांव है, अपने लोग हैं, और ये बात तो सच है कि जब से अलीज़ा आई है ये भी बाहर घूमने फिरने नहीं गई। उसने तो हमारा गांव देखा ही नहीं। जहाज़ेब, तुम बच्चियों को ले जाना और उन्हें घुमा लाना, जवाब हालिम साहब की तरफ से आया था। लेकिन हम तो लड़कियां जाएंगी, वहां पर भाई का क्या काम? सबा ने जहांज़ेब के साथ जाने पर एतराज़ किया। नहीं बेटा, जवान बच्चियां हो, अकेली जाती हुई अच्छी नहीं लगोगी, किसी मर्द का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम्हारा भाई होगा ना साथ, वो तुम लोगों को हर जगह घुमा देगा, और जहाँ तुम लोगों को तन्हाई चाहिए होगी वो तुम लोगों को तन्हा भी छोड़ देगा। लेकिन तुम लोग अकेली हरगिज़ नहीं जाओगी। बीजान ने सबा को समझाना चाहा तो सबा हाँ में सर हिला गई। वो बहस करके ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इस सारे गुफ्तगू में अलीज़ा एक बार भी नहीं बोली थी और ना ही उसने नज़रें उठाकर किसी की भी तरफ देखा था। वो सिर्फ अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ थी, जो बहुत ही सुस्ती से कर रही थी, जबकि उसका दिमाग कहीं और ही था। वो अपने सुन होते दिमाग से मुसलसल मुकद्दम के बारे में ही सोच रही थी। बेटा, तुम बच्चियों को ले जाना, आलिम साहब ने जहांज़ेब की तरफ देखते हुए बोला। जी ठीक है चचा जान। जहांज़ेब ताबेदारी से बोलता अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। फरी, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो, तुम चली जाओ, अलीज़ा अफरा की जानिब देखते हुए बोली।
जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अलीज़ा को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। भाभी प्लीज़ चले ना, आप बाहर का माहौल देखेंगी तो आप फ्रेश हो जाएंगी, आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। प्लीज़ अब मेरी बात मान ले, मेरी खातिर सिर्फ एक बार। अफरा बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोली, परी तुम फजूल जिद मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर ही रहूंगी। अलीज़ा ने फिर से इनकार किया। तो आप नहीं जाएंगी भाभी? अफरा उदासी से बोली तो अलीज़ा ने अफरा की तरफ देखे बगैर ही नाम में सर हिला दिया। ठीक है भाभी, आपकी मर्जी, आइंदा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। अफरा अलीज़ा से बोलती उठ खड़ी हुई तो अलीज़ा ने नज़र उठाकर अफरा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। मतलब वो अलीज़ा के इनकार से हर्ट हो रही थी। अच्छा रुको, आ रही हूँ, मैं चेंज कर लूँ। अलीज़ा बोलती चेंज करने चली गई, जबकि अफरा अलीज़ा को मानते देखकर खुशी से उछल ही पड़ी। वो लोग हवेली से निकल चुके थे। फ्रंट सीट पर अफरा और जहांजेब और पीछे अलीज़ा सबा बैठी हुई थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अलीज़ा विंडो से बाहर के नज़ारे देख रही थी, जबकि सबा अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। भाभी आप ठीक है? अफरा ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए पूछा। अलीज़ा ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और दोबारा विंडो स्क्रीन के बाहर के नज़ारे देखने लगी। वो इन सब से बिल्कुल बेनियाज बैठी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। उसका दिमाग एकदम सुन्न सा पड़ रहा था, जैसे कुछ समझ ही ना आ रही हो। और ये भी सब सबा की ही करामात थे। जब अफरा अलीज़ा को मनाने के लिए उसके कमरे में गई थी, तो मुलाजमा को बोल कर गई थी कि अलीज़ा के लिए दूध गर्म करके लाए, क्योंकि उसे टैबलेट खानी थी। और ये सबा ने सुन लिया था, इसलिए उसने उस दूध में भी कोई दवा मिला दी थी, जिसे पीने के बाद अलीज़ा को अपना दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हो रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है वो सबसे बिल्कुल बेनियाज थी। जहांज़ेब ने उन तीनों को बहुत से बाग, खेतें और वहां पर मौजूद ऊंची पहाड़ियां दिखाई थी, जो बहुत खूबसूरत थी। यकीनन अगर अलीज़ा को अपना होश होता तो इस खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती, लेकिन वो बुझी बुझी सी थी, ढीली ढीली सी थी। और उसे ऐसे देखकर अफरा और जहांज़ेब बहुत परेशान हो रहे थे। अफरा को तो अलीज़ा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जहांज़ेब उन लोगों को अपने खेतों में ले आया, जहाँ औरतें पानी भर रही थी और उनके कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां वहां पर खेल कूद रहे थे। वहां पर काफी रौनक लगी हुई थी। अफरा को ये जगह बहुत पसंद आई थी, इसलिए अफरा अलीज़ा और सबा को लेती वहां पर चली गई, जबकि जहांज़ेब खेतों में काम करते मर्द हजरात की तरफ चला गया। अफरा काफ़ी देर से मुकज़िम से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि मुकज़िम को अलीज़ा की तबीयत के बारे में बताए, जो कल रात से गायब है। और वो सुबह से बार बार मुकज़िम का नंबर ट्राई कर रही थी, और अब खुशकिस्मती से मुकज़िम का नंबर ऑन हो ही गया था और उसने अफरा का कॉल रिसीव कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई। कॉल रिसीव होते ही अफरा ने मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? तुम सुबह से कॉल्स कर रही हो और तुम्हारी भाभी किधर है? उनका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है? मुकज़िम ने एक ही बार में तीनों सवाल कर डाले थे, जबकि अलीज़ा का हाँ पूछने पर अफरा मुस्कुरा दी। मतलब इसका अंदाज़ा गलत था। मुकज़िम इससे बिल्कुल गाफिल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो अपने किसी काम में उलझ गया था, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सका। और अलीज़ा की फ़िक्र तो उसे बहुत ज़्यादा थी। मुकज़िम की बात करने के अंदाज से ही वो सब कुछ समझ चुकी थी। जी भाई, सब खैरियत थी। आप कल रात से घर वापस नहीं आए और भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है कल से। आज सुबह से ही वो कुछ ठीक नहीं लग रही, ना ही वो किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार है। बीजान की इजाज़त से हम सब बाहर आए हैं, और बाहर आने पर भी भाभी की तबीयत वैसे की वैसी ही है। वो ना तो किसी से बात कर रही है और ना ही किसी चीज़ की तरफ देख रही है। मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाए और भाभी को देखे आकर। अफरा ने मुकज़िम को सच्चाई से सारी तफसील बताई, क्योंकि वो कुछ भी छुपाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। कहाँ है तुम्हारी भाभी? मुकज़िम ने अगला सवाल किया। जी वो यहाँ ही है, रुके मैं आपकी बात करवाती हूँ। अफरा बोलती अलीज़ा की जानिब बढ़ी और अलीज़ा की तरफ फ़ोन बढ़ाया तो अलीज़ा ने नासमझी से नज़र उठाकर अफरा की जानिब देखा। तो अफरा ने फ़ोन पकड़ने का इशारा किया। अलीज़ा ने फ़ोन पकड़कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम किया, चूँकि वो समझ चुकी थी कि कॉल किसकी है। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी तबीयत है आपकी अब? फ़ोन में से मुकज़िम की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। जी ठीक है, अलीज़ा ने मुनासिब सी आवाज़ में जवाब दिया। तो उसे ऐसी बात करता देख कर मुकज़िम बेचैन सा हुआ। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। मुकज़िम का लहजा एकदम से संजीदा हुआ था, क्योंकि सामने खड़े दाद की तरफ से जो इशारा मुकज़िम को मिला था, उससे मुकज़िम की परेशानी दुगनी हो गई थी। जी, अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। तुम इस वक्त जहाँ पर भी हो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगी। तुम्हारे करीब ही अफरा और जहांज़ेब मौजूद है। कुछ भी हो जाए तुम उन दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले, यहीं पर रुकोगी। आई समझ में बात?
मुकद्दम दाद को इशारा करते गाड़ी में बैठा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अलीजा को जवाब ना देता देखकर मुकद्दम सख्त लहजे में बोला। जी, अलीजा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूँ तुम तक। अच्छा। मुकद्दम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब कॉल कट गई। शिट! मुकद्दम ने अपना बंद फ़ोन देखकर डैशबोर्ड पर फेंका। दाद, अपना फ़ोन दो जल्दी। मुकद्दम का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। दाद ने फ़ौरन अपना फ़ोन मुकद्दम की जानिब बढ़ाया तो मुकद्दम ने जल्दी से पकड़कर जहांज़ेब को कॉल मिलाई जो तीसरी बेल पर उठा ली गई। हेलो! फ़ोन के स्पीकर में जहांज़ेब की आवाज़ गूंजी। कहाँ पर हो तुम? मुकद्दम काफ़ी स्ट्रेस अंदाज में बोला। मैं खेतों में हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक है? जहांज़ेब को फिक्र रहा। अलीज़ा किधर है? अगला सवाल पूछा गया। वो औरतों की साइड पर है, अफ़रा और सबा के साथ है। क्या हुआ है? तुम कुछ बताओगे? जहांज़ेब को उसका लहजा फ़िक्रमंद लग रहा था। जाओ जल्दी उन्हें लो और हवेली पहुंचो। जल्दी निकलो यहाँ से। मुकद्दम अब की बार इस तरीके से बोला कि जहांज़ेब वहाँ से भागा। तुम कुछ बताओगे? हुआ क्या है? जहांज़ेब भागते हुए बोला। बकवास बंद करो अपनी और उन्हें लेकर निकलो यहाँ से। गांव में खावर के बंदों को देखा गया है। अलीज़ा की जान को खतरा है। निकल कर उन्हें वहाँ से निकलो जल्दी उनको लेकर। मुकद्दम दहाड़ा तो जहांज़ेब फ़ोन बंद करता हुआ तेज़ी से भागा। बीबी, वो मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। आप इससे मिल लें। वो चल नहीं सकती। एक औरत अफ़रा के करीब आती हुई बोली। कहाँ है आपकी बेटी? अफ़रा इर्द गिर्द नज़र घुमाती हुई बोली। वो जी उस दरख्त के पास। उस औरत ने कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। भाभी, मैं बस अभी आई। अफ़रा मुस्कुराकर बोलती उठी और उस औरत के साथ चली गई। अफ़रा के जाते ही सबा उठी और अलीज़ा के करीब आई। तुम अकेली बैठी हो? चलो आओ, हम वहाँ फूल देखते हैं। सबा दूसरी तरफ इशारा करती हुई बोली तो अलीज़ा ने ना में सर हिलाया। ओ कम ऑन, उठो भी। सबा उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगी। शायद यही इस दवा का असर था जो बंदे में सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर देता है और वो किसी के इशारों पर चलने लगता है। सबा अलीज़ा को लिए दूसरी जानिब आई जहाँ कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। सबा ने किसी को इशारा किया तो वो दो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अलीज़ा के पीछे आकर खड़े हो गए और एक आदमी ने एक रुमाल अलीज़ा के मुंह पर रख दिया जिससे अलीज़ा ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की मगर कुछ ही देर में उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई और वो वहीं होश व खराश से बेगाना हो गई। जहाँ से भागता हुआ उस जगह पर आया जहाँ पर वो उन तीनों को छोड़कर गया था मगर वहाँ पे उसे कोई भी नजर ना आया जबकि थोड़े फासले पर सबा उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। सबा, अफरा और अलीज़ा कहाँ पर है? जहांज़ेब ने परेशानी के आलम में सबा से पूछा। पता नहीं भाई, मैं तो पानी पीने गई थी, वो दोनों तो इधर ही बैठी थी। मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों किधर गई। सबा ने मकारी से झूठ बोला। क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सबा अपने चेहरे पर झूठी परेशानी लाते हुए बोली। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जहां से बोलता दूसरी तरफ को भागा जबकि सबा के चेहरे पर एक पल के लिए फातिहाना मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई और वो भी जहांजेब के पीछे चलती। आखिर उसे अब ड्रामा तो करना था परेशानी का, सबकी नज़रों में थोड़ी आना था उसे। जहांजेब दूसरी तरफ आया तो वहां पर कुछ फासले पर बच्चों के दरमियान अफरा बैठी हुई दिखाई दी तो वो तेज तेज कदम लेता अफरा की तरफ बढ़ गया। अफरा, अलीज़ा कहाँ पर है? जहांजेब अफरा के सर पर खड़ा होता हुआ परेशानी के आलम में बोला तो उसे परेशान देखते अफरा भी फौरन उठ खड़ी हुई। भाभी तो उधर ही थी सबा के साथ ही, और मैं तो यहाँ इस बच्ची को देखने आई थी। क्या हुआ है? भाभी कहाँ पर है? अफरा को अलीज़ा ना दिखाई दी तो वो भी परेशान हो गई और जहांजेब से पूछने लगी। अलीज़ा मेरे साथ ज़रूर थी लेकिन मैं तो पानी पीने गई थी और जब मैं वापस आई तो वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय भाभी के। सबा ने अपनी सफाई पेश की। बेवकूफ़ लड़की, तुम उसके पास ही रहती, तुम वहाँ से क्यों गई? जहांजेब अफरा की तरफ देखता दहाड़ा तो अफरा उसके दहाड़ने से खौफ से कांप गई थी। जहांजेब, अफरा ने कुछ बोलना चाहा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से उसकी जान खतरे में आ चुकी है। जहांजेब अफरा की तरफ देखता घुर्राया तो अफरा की आंखें बेसाख्ता नम हुई। अफरा से नजरें हटाते हुए जहांजेब ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई और कदम आगे की जानिब बढ़ाए जबकि पीछे खड़ी अफरा और सबा को अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो दोनों उसके पीछे चल दी। हेलो, मेरी बात सुनो कान खोलकर। इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर जगह पर अपने आदमियों को फैला दो। हमारे गांव में खावर के आदमी दाखिल हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक भी इस गांव से बाहर चला गया तो तुम सब की मौत मेरे हाथों पक्की है। जहांजेब फ़ोन कान से लगाता खासी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा था और फ़ोन बंद करके अपनी जेब में रखता गाड़ी में बैठ गया।
जबकि उसके बैठते ही वो दोनों भी बैठ चुकी थी। पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता जहांजेब हवेली पहुंचा। हवेली के आगे गाड़ी रोककर जहांजेब ने उन दोनों को उतरने का इशारा किया तो वो दोनों उतर गई और हवेली के अंदर चली गई। उनके हवेली के अंदर जाते ही जहांजेब ने जन से गाड़ी दौड़ाई। कहाँ मरे थे तुम? तुमसे एक इसकी रखवाली नहीं हो सकी? अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जहांजेब की दी गई खबर सुनते ही मुकद्दम अपने आपे से बाहर होता गुस्से से दहाड़ा। कुछ नहीं होगा उसे, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, कोई भी अब गांव से बाहर नहीं जा सकता। मैं गांव की हदों पर खड़ा हूँ, यहाँ से जाने वाला हर शख्स अपनी जान से जाएगा। जहांजेब मुकद्दम को हौसला देते हुए बोला, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। वो कहाँ हौसला कर सकता था अलीजा के मामले में। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो 1 मिनट की भी देर किए बगैर उड़कर गाँव पहुंचे और उस शख्स का सीना गोलियों से छलनी कर दे जिसने उसकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दाद गाड़ी तेज चलाओ। मुकद्दम फोन बंद करता दाद को हुक्म देते हुए बोला तो दाद ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, जो पहले ही काफी हद तक तेज थी और अब गाड़ी हवाओं से बातें करती जा रही थी, क्योंकि दाद को अलीजा बहुत पसंद थी। उसकी कोई बहन नहीं थी, मगर वो बिल्कुल उसे अपनी बहन की तरह लगती थी और अपनी बहन की तरह ही अजीज थी। अफरा जब से घर वापस आई थी तब से रोए ही जा रही थी। 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जब वो चुप हो जाए, जबकि उसे ऐसा रोता देखकर घर वाले मजीद परेशान हो रहे थे। फरी बच्चे चुप कर जाओ, ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा, इस तरह तुम हमें मजीद परेशानी में मुब्तला कर रही हो। तुम अपनी भाभी के लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक उसे सलामत रखे। बीजान अफरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जो उनकी गोद में सर रखे रो रही थी। नहीं बीजान, मेरी लापरवाही की वजह से ऐसे हो गया। मैं ना जाती भाभी को अकेला छोड़कर, तो भाभी इस वक्त मेरे साथ होती। अगर भाभी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। अफरा रोती हुई बोली, जबकि रो रो कर उसकी आवाज़ ही भारी हो चुकी थी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा उसे। बीजान ने उसे चुप करवाना चाहा, जबकि वो खुद भी बेहद परेशान हो चुकी थी। उनका दिल खौफ से लरज रहा था कि अगर अलीजा को कुछ हो गया तो वो सब ही खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। जबकि उनके पास ही जहाँ नमाज पर बैठी रज़िया बेगम का दिल तो अलीजा की फ़िक्र के लिए अपने रब के हुजूर दुआएं मांग रहा था और सिमरा बेगम की भी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वो उनकी सगी बेटी नहीं थी, मगर उन्होंने कभी उसे अफरा से कम नहीं समझा था और अलीजा ने भी बिल्कुल उन्हें माँ जैसी इज्जत दी थी। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारे आदमी निकले क्यों नहीं? उसे लेकर सबा फोन कान से लगाती काफ़ी परेशानी के आलम में बोली। मुकद्दम और जहांजेब ने गांव में चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं, अगर मेरे आदमी वहां से निकले तो वो पकड़े जाएंगे। खबर की आवाज़ फ़ोन में गूंजी। कैसे बेहुदा आदमी रखे हैं तुमने? तुमसे एक ज़रा सा काम नहीं हो रहा? उनसे सबा गुस्से से बोली। अपनी बकवास बंद रखो लड़की, यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि अगर मेरे आदमी पकड़े गए तो मुकद्दम मीर अहमद ना तो तुम्हें छोड़ेगा और ना ही मुझे। खावर ने अपना डर सामने रखा। अपने आदमियों को बोलो कोई हल निकाले और जल्द अज जल्द अलीजा को लेकर यहाँ से निकले, क्योंकि मुकद्दम गाँव पहुँचने वाला है और अगर वो पहुँच गया तो वो सारे गाँव को आग लगा देगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सबा एक एक लफ्ज़ पर जोर देती हुई बोली और बगैर उसकी सुने कॉल काट कर गई और फ़ोन बेड पर उछाल दिया। उससे बार बार अपनी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। अलीजा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ मुकम्मल अंधेरा था और सामने एक टूटी हुई खिड़की से कुछ रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। वो कमरा काफ़ी पुराना था और उसमें सब सामान टूटा बिखरा पड़ा था। अलीजा अपना भारी सर थामते उठकर बैठी। ये मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? अलीजा खुद को किसी अनजान जगह देखकर काफ़ी परेशान हुई। गोया उसे याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची हो। उफ अल्लाह, मेरा सर! उसके सर में अभी भी शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो अपना सर ही थाम कर बैठ गई। जब उसके कानों में कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ पड़ी तो वो हिम्मत करती उठी और खिड़की के करीब गई। देखिए, हम अभी गांव से बाहर नहीं निकल सकते। जहांजेब ने चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं, अगर हम यहाँ से हिले भी तो हम पकड़े जाएंगे। एक आदमी फ़ोन पर शायद किसी को वजाहत देने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके सामने 2 आदमी खड़े उसी की तरफ देख रहे थे। जी सर, समझ गए, हम यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं। जी, वो लड़की बेहोश है। ओके सर, वो आदमी बोलता फ़ोन कान से हटाता बंद कर गया और सामने खड़े दोनों आदमियों की तरफ उनसे मुखातिब हुआ।
गाड़ी का इंतजाम करो और कुछ औरतों का भी हुक्म मिला है कि उस लड़की का हुलिया बदल कर उसे लेकर जाना पड़ेगा। कुछ औरतों का इंतजाम करो और तुम गाड़ी लेकर आओ। वो आदमी सामने खड़े दोनों आदमियों को हुक्म देता उनके साथ ही बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि साइड पर खिड़की के पीछे छुपी अलीजा उनकी सारी बातें सुनकर उस पर खौफतारी होने लगा। ये अल्लाह, ये लोग कौन है और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं और कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं मुझे? मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत की और मेरी हिफाजत करना। मेरे मीर, आप कहाँ कहाँ पर है? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाया कर। अलीज़ा रोती हुई अपने खुदा से मदद मांगती आखिर में मुकद्दम को पुकारने लगी। जब उसकी नज़र कमरे के एक दरवाजे पर पड़ी जो शायद बंद था, अलीज़ा फ़ौरन से पहले उठी और तेज़ कदम लेती उस दरवाजे तक पहुंची। उस दरवाजे को हाथ लगाकर देखा तो दरवाज़ा लकड़ी का था। अलीज़ा ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत ताकत आजमाई, बहुत हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर तंग आकर अलीज़ा वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है ऐसा उसके साथ। मुकद्दम की गाड़ी हवाओं से बातें करती हुई गांव में दाखिल हुई थी। गांव की हदूद पर ही उसे जहांजेब और कुछ उसके आदमी वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। गाड़ी वहीं पर रोककर मुकद्दम तेजी से गाड़ी से उतरा और जहांजेब की तरफ बढ़ा। क्या खबर मिली है? कुछ पता चला? मुकद्दम बेकरार और बेपनाह परेशानी के आलम में जहांजेब से पूछ रहा था। नहीं मुकद्दम, गांव की हदूद से बाहर कोई भी नहीं जा सका और ना ही कोई सुबह से गया है। ये बात तो पक्की है कि जिसने भी अलीज़ा को अगवा किया है वो इसी गांव में मौजूद है और मैं सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में था। अगर तो अलीज़ा इसी गांव में मौजूद है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम उस गांव की गली गली से वाकिफ़ हैं, तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जहांजेब ने ही मुकद्दम को हिम्मत देनी चाहिए। चलो दाद। मुकद्दम बगैर जहांजेब को कोई जवाब दिए दाद को हुक्म देता गाड़ी में बैठा और इस बार गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि जहांजेब और उसके आदमियों की भी गाड़ियां उनकी गाड़ियों के पीछे ही थी। सुबह से शाम होने को थी, सूरज ढलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा अपनी जगह बना रहा था, जबकि अलीज़ा इस बंद कमरे में सुबह से बैठी भूखी प्यासी अपनी इज्जत की सलामती की दुआ कर रही थी। अलीज़ा को इस वक्त शदीद प्यास महसूस हो रही थी, मगर वहां पर कोई पानी मौजूद न था। उसने एक बार फिर से उठते दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, मगर जवाब कोई भी न आया। फिर खुद ही थक हार कर वहीं पर बैठ गई। अब तो उसमें हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो दरवाज़ा खोलने की या कुछ भी बोलने की हिम्मत ही कर ले। कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में दो औरतें और उनके आगे चलता हुआ एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जबकि उन्हें देखते ही अलीज़ा फौरन से उठ खड़ी हुई। आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें देखते ही अलीज़ा उनकी मिन्नत करने लगी। तुम किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तुम, मगर क्या करे, हमारे मालिक का माल जो हो, जब तक वो नहीं छू लेते तब तक हमें कहाँ ये लुत्फ़ मिलेगा। हमें तो उनके छू कर छोड़ने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो आदमी अलीज़ा के वजूद पर गंदी नज़र डाले ऊपर से लेकर नीचे तक देखते कमीनगी से कह कहा लगाता हुआ हंसकर बोला, जबकि उसकी ऐसी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर अलीज़ा मज़ीद खौफ में मुब्तला हो गई थी। हुलिया बदलो इसका और लेकर आओ जल्दी बाहर। वो आदमी उन औरतों को हुक्म देता कमरे से बाहर निकल गया। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाल दे। आपको पता है मैं किसकी बीवी हूँ? मैं मुकद्दम मीर अहमद की बीवी हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दें, मेरी मदद करें, मेरी इज्जत को ख़तरा है। जब कोई रास्ता नज़र न आया तो अलीज़ा उन औरतों के सामने ही गिड़गिड़ाने लगी। हम मजबूर हैं बीबी, हम जानते हैं कि तुम किसकी बीवी हो, लेकिन हमारे बच्चे और हमारे शौहर इन लोगों के कब्जे में है। अगर हमने उन लोगों की बात नहीं मानी तो ये उन्हें मार देंगे। इन औरतों ने रोते हुए अलीज़ा को अपनी मजबूरी बताई तो अलीज़ा के मुंह पर एकदम से चुप लग गई, जबकि खौफ के मारे उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। अलीज़ा को महसूस हो रहा था जिससे उसका दिमाग उसका अब काम करना छोड़ दिया हो। वो बेजान सा जिस्म लेती वहीं पर ढहसी गई थी। मुकद्दम तेजी से गांव का एक एक घर और उस घर का एक एक चप्पा छान मार रहा था, मगर अलीज़ा तो क्या, अलीज़ा का कोई भी सबूत उससे कहीं से भी बरामद नहीं हो पा रहा था। सिर्फ मुकद्दम ही नहीं, जहांजेब दाद और उनके तमाम आदमी गांव के तमाम घरों में जाकर एक घर की कई कई बार तलाशी ले रहे थे, मगर बेसुध उन्हें अलीज़ा कहीं नहीं मिल रही थी। तमाम घरों की तलाशी लेने के बाद मुकद्दम ने अपना रुख जंगल की जानिब किया, जहाँ गांव से ज़रा हट कर था जंगल की जानिब किया जो गांव से ज़रा सा हट कर था। वहां पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे, मगर मुकद्दम को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अलीज़ा वहीं पर मौजूद होगी। मुकद्दम तेज़ तेज़ कदम लेता तकरीबन भागने के अंदाज में जंगल में दाखिल हुआ, जबकि रात होने की वजह से जहांजेब और उनके आदमी भी मुकद्दम के पीछे ही थे और अब वो लोग हाथों में टॉर्च लिए जंगल में अलीज़ा को तलाश कर रहे थे।
कुछ फासले पर आने के बाद मुकद्दिम को एक घर दिखाई दिया जो काफी पुराना और टूटा हुआ था। मुकद्दिम भागता हुआ उस घर के करीब गया। उस घर में दाखिल होते मुकद्दिम को सामने सिर्फ एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे के पास जाते मुकद्दिम ने एक झटके से दरवाजा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुआ, जहां मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा था। अपने पीछे आते एक आदमी के हाथ से टॉर्च खींची और उस कमरे की जानिब दौड़ाई, तो वहां पे उसे कोई शख्स तो दिखाई नहीं दिया, अलबत्ता वहां जमीन पर अलीजा का दुपट्टा जरूर मौजूद था, जिसे देखते ही वो पहचान चुका था। तेजी से आगे बढ़कर मुकद्दिम ने जमीन से अलीजा का दुपट्टा उठाया। दाद अपने आदमियों को बोलो, गांव की हदूद को जो भी पार करने की कोशिश करे उसे गोली मार दे। मुकद्दिम ऊंची आवाज में दहाड़ा और दोबारा बाहर की जानिब भागा। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो लोग अभी ही निकले हैं अलीजा को लेकर, और इस बात का सबूत पास ही पड़े कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान था जो बिखरा पड़ा था, और सबसे अहम बात, वो अलीजा की खुशबू को पहचानता था जो उसके दुपट्टे में भी मौजूद थी। खावर हसन, अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई तो तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों को कुत्ते भी खाने से मुंह मोड़ जाएंगे। मुकद्दिम अलीजा का दुपट्टा अपने हाथ पर लपेटता हुआ वहशतज़दा लहजे में बोला और तेज रफ्तार से जंगल से निकलता चला गया। गांव की हदूद के कुछ फासले पर ही उन आदमियों को मालूम हो चुका था कि अभी अभी गांव की हदूद पर मुकद्दिम के आदमी मौजूद है, और वो हर आने जाने वाले की अच्छी तरह से तलाशी लेकर ही उसे आगे बढ़ने दे रहे थे। सुनो, इस लड़की के मुंह पर टेप लगाओ और इसका चेहरा ढांप दो ताकि ये बोल ना सके और ना ही इसे कोई देख सके। वो आदमी पीछे बैठी एक औरत को हुक्म देते हुए बोला, तो इस औरत ने कांपते हाथों से अलीजा के मुंह पर टेप लगाए और उसके चेहरे पर घूंघट कर दिया, जबकि इस सारी कार्रवाई में अलीजा भरपूर मजामत करती, नफी में सर हिलाते, ज़ारो कतार रोकर उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, क्योंकि ये आखिरी मौका था खुद को बचाने का, मगर वो लोग उसका मुंह बंद कर चुके थे। खुद को बहुत सीरियस रखते उस आदमी ने गाड़ी आगे की जानिब बढ़ाई। गाड़ी गांव की हदूद पर पहुंचते ही कुछ आदमी गाड़ी के आगे आ खड़े हुए, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ भाई, कौन है ये औरतें और किधर जा रहे हो रात के इस वक्त? इनमें से एक गार्ड ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को मुखातिब करते हुए बोला। साहब, हम शहर जा रहे हैं, ये हमारे घर वाली है और इनके दरमियान में बैठी इसकी बीवी है, काफ़ी बीमार है, इसलिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा रास्ता छोड़ दे, हमें देर हो रही है। वो आदमी बिल्कुल सीरियस अंदाज में गार्ड से बोला, जबकि पीछे बैठी हुई अलीजा, जो ना तो खुद को हिला सकती थी क्योंकि इन जालिमों ने उसके हाथ पांव भी बांध रखे थे, और ना ही बोल सकती थी, ज़ारो कतार रोते अल्लाह से मदद तलब कर रही थी, किसी तरह उन्हें पता चल जाए कि ये अलीजा ही है और वो लोग उन आदमियों को पकड़ ले और उसकी इज्जत को बचा लें। तो गार्ड ने एक और गार्ड को इशारा किया तो वो टॉर्च लेकर उसकी जानिब बढ़ा। तुम इस गांव के नहीं लगते, इसलिए तुम्हारी तलाशी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। गार्ड बोलता हुआ दूसरे गार्ड की जानिब हाथ बढ़ाया, और टॉर्च उसने पकड़ी ही थी जब उस आदमी ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पकड़ो इन्हें, यहाँ से निकलने नहीं चाहिए ये लोग, वो गार्ड ऊंची आवाज़ में बोला, तो तमाम गार्ड्स ने अपनी गाड़ियाँ उनके पीछे लगा दी। वो गार्ड्स मुसलसल फायरिंग करते उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका हर निशाना चूक रहा था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो आदमी गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ करता आगे की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक इस गाड़ी पर मज़ीद फायरिंग हुई, और अब की बार गोली इस गाड़ी के ऐन निशाने पर लगी थी। गोली गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ी के टायरों में चड़चड़ाहट का शोर पैदा हुआ और गाड़ी रुक गई। मुकद्दिम तेजी से गाड़ी से निकला और उस गाड़ी की जानिब बढ़ा। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो गाड़ी में मौजूद लड़की का दिमाग उड़ाने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। गाड़ी से निकलते आदमियों ने अपने हाथों में गन्स थामी और मुकद्दिम को गन दिखाते हुए धमकी दी। तुम क्या बच्चा समझते हो मुझे? मैं कोई आम आदमी नहीं, मुकद्दिम मीर अहमद हूँ, और इन खिलौनों में से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। मुकद्दिम बगैर किसी खौफ की फुर्ती से उनकी जानिब गया, जबकि उनमें से एक आदमी ने गोली चलाया था, मगर मुकद्दिम ने झुककर उसका निशाना नाकाम कर दिया। वहीं पीछे से गोलियां चली थी, जिनमें से एक गोली एक आदमी की टांग और बाजू पर, और एक आदमी के बाजू और गन वाले हाथ पर, जबकि एक आदमी की पसली में लगी थी, और ये गोलियां चलाने वाले दाद और जहांज़ेब थे। गोलियां लगने की वजह से उनके हाथों से गन्स गिर चुकी थी। गार्ड्स ने तेजी से जाकर उन तीनों आदमियों को दबोचा था। गाड़ी के साथ ही खौफ से उन आदमियों को देखती वो औरतें खड़ी थी। मुकद्दिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसे वहां अलीजा बेहोश पड़ी दिखाई दी, क्योंकि इस हालत में पहले ही वो बहुत
اس کی حالت پہلے ہی بہت خراب تھی اور گولیوں کی آواز سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مقدم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹاتے ہی مقدم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جو پسینے سے شرابور ہوا پڑا تھا، جس کی وجہ سے بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ منہ پر کوئی بڑی سی ٹیپ لگی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ کسی رسی سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ علیزہ کی ایسی حالت دیکھ کر مقدم کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مقدم نے آرام سے علیزہ کی منہ سے ٹیپ اتاری اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ علیزہ اٹھو میری جان۔ مقدم اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، مگر اس کے وجود میں ذرا حرکت نہیں ہوئی۔ مقدم کو محسوس ہوا جیسے علیزہ کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے اور اس کی سانسیں بھی بہت ہلکی چل رہی ہے، جو مقدم کا سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ مقدم نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے مقدم نے علیزہ کو احتیاط سے بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیزی سے گاڑی ہاسپٹل کی جانب بڑھائی۔ جہانزیب گھر آیا تو گھر کے تمام افراد باہر لاؤنج میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جہانزیب فون پر انہیں تمام صورتحال بتا چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ مقدم باپ بننے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تمام حویلی میں تو خوشیاں سما گئی تھی۔ ہر شخص بے انتہا خوش تھا۔ بی جان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علیزہ کا انتظار کیے بغیر خود ہی ہاسپٹل چلی جائے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جہانزیب مسکراتا ہوا سب کے درمیان آ کر بیٹھ گیا جہاں افرا بیٹھی ہوئی تھی۔ جہانزیب کے بیٹھتے ہی افرا کھسک کر تھوڑی پیچھے کھسک گئی۔ پیچھے ہو کر بیٹھی تو یہاں زیب نے گردن گھما کر ایک نظر افرا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات صاف ظاہر تھے۔ اسے دیکھتے جہانزیب ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ افرا اس سے ضرور ناراض ہوگی، کیونکہ وہ اس پہ اتنا غصہ جو کر گیا تھا۔ بیٹا مقدم اور علیزہ کدھر ہے؟ وہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ بی جان نے جہانزیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بی جان وہ لوگ 2 گھنٹوں تک گھر آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے، آپ سب سو جائیں۔ وہ لوگ آئیں گے تو صبح آپ ان سے مل لیجیے گا۔ جہانزیب بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے بیٹا؟ علیزہ ٹھیک تو ہے نا؟ اب کی بار سوال رضیہ بیگم کی طرف سے پوچھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بولا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور 2 گھنٹوں تک اسے ہوش آ جائے گا۔ مقدم اسے لے کر واپس آئے گا، آپ سب آرام کر لیں۔ جہانزیب نے تحمل سے جواب دیا۔ جہانزیب ٹھیک بول رہا ہے، آپ سب آرام کر لیں بی جان۔ وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر ہم سب صبح ان سے مل لیں گے۔ حالم صاحب وہاں بیٹھے تمام افراد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جاؤ بچے، تم لوگ بھی آرام کر لو، صبح سے پریشان بیٹھی ہو۔ سمرا بیگم نے صبا اور افراح کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، افراح بولتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ جہانزیب نے بغور صبا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جہانزیب کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شک تو اسے پہلے بھی صبا پر تھا، کیونکہ جب اس نے بولا کہ وہ پانی پینے گئی تھی تو اس وقت جہانزیب نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس طرف سے وہ آ رہی تھی اس طرف تو پانی کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں، بلکہ وہاں پر تو صرف درخت تھے اور کھیتیں تھیں، جہاں پانی تو کیا تھوڑی سی بیٹھنے کی بھی جگہ میسر نہ تھی۔ مگر واپسی پر اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا تو صبا وہاں پر کیا کرنے گئی تھی؟ اور اب اس کے چہرے کا یہ اڑا رنگ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، لیکن جہانزیب کسی بھی ثبوت کے بنا کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ افراح بی جان کو لیتی انہیں ان کے کمرے میں چھوڑنے گئی تھی۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پر پا کر حیرت سی ہوئی، جو کہ جہاں تک اسے یاد تھا تو وہ کسی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور اسے تو کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا جو اسے کہیں پر لے جا رہے تھے اور گولیاں چل رہی تھی، پھر وہ یہاں کیسے؟ علیزہ نے نظر گھما کر اپنی دائیں جانب دیکھا تو مقدم بیٹھا یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مقدم کو دیکھتے ہی علیزہ جھٹکے سے اٹھی تھی، جبکہ اسے ایسے اٹھتا دیکھ کر مقدم نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا ہوا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ مقدم اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بے حد محبت بھرے لہجے میں بولا تو علیزہ بغیر کچھ بولے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ دل خوف سے مارے ابھی بھی لرز رہا تھا۔ میر، علیزہ خوفزدہ آواز میں بولی اور اپنا نازک حصار مقدم کے گرد اور تنگ کیا، جیسے ابھی کوئی اسے مقدم سے چھین کر لے جائے گا، جبکہ اسے ایسے خوف میں دیکھ کر غصے سے وہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ جانے میر، میں تمہارے پاس ہی ہوں، دیکھو۔ مقدم اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے مزید اپنا چہرہ مقدم کے سینے میں چھپایا۔ میر، وہ لوگ مجھے علیزہ سے آگے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی، اسے جیسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی میں وہ محفوظ ہے
और मुकद्दम के पास मौजूद है। उसे कुछ नहीं हुआ और उसे कहीं ले जाया नहीं गया। मेरी जान, कोई कहीं नहीं लेकर गया तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने मीर के पास हो। मुकद्दम उसकी कमर सहलाता उसका डर कम करने की कोशिश करते हुए बोला, और वो इसमें कामयाब भी ठहरा था। वो काफ़ी पुरसुकून हो गई थी। अब ठीक हो? मुकद्दम अपनी कमर पर बंधा अलीज़ा का नाजुक हिसार देखते मध्यम सा मुस्कुराते हुए बोला तो अलीज़ा ने बगैर बोले ही हाँ में सर हिलाया तो मुकद्दम ने उसका सर चूम लिया। तुमने कैसे सोच लिया कि मुकद्दम मीर अहमद अपनी रूह को खुद से दूर जाने देगा? मुकद्दम उसे अपने सामने करते हुए बोला। वो बोल रहे थे कि वो मुझे आपसे बहुत दूर ले जाएंगे और मेरे साथ। अभी अलीज़ा आगे कुछ बोलती मुकद्दम उसकी बात काट चुका था। अगर कोई 1000 बार मर के भी पैदा हो जाए ना, तब भी कोई मुकद्दम मीर अहमद से उसकी ज़िंदगी को जुदा नहीं कर सकता। और भूल जाओ सब, ना तो कोई तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही अब मैं ये नौबत आने दूंगा। तुम्हारे मीर को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये देखो। मुकद्दम ने बोलकर अलीज़ा का हाथ पकड़ के अपने दिल के मकाम पर रख दिया। जब तक ये धड़कना बंद नहीं होता, तब तक तुम्हारा मीर तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। मुकद्दम को अंदाज़ा था कि वो उन लोगों ने कैसी बेहुदा गुफ्तगू की होगी। इस वजह से वो अलीज़ा के मुंह से दोबारा वो अल्फाज नहीं सुन सकता था जिससे उसे भी अजियत मिले और उसे भी वो चाहता था कि वो जो हुआ अलीज़ा वो सब कुछ भूल जाए। मुकद्दम की आखिरी बात पर अलीज़ा ने तड़प कर मुकद्दम की तरफ देखा था और बगैर कुछ बोले दोबारा उसके गले लग गई थी, जबकि कब से रुके आंसुओं ने बाहर आने का रास्ता बनाया था। बेगम, कुछ ख्याल कर लो, ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं। क्यों चिपक चिपक कर मुझे बहका रही हो? मुकद्दम उसके गिर्द अपना हिसार बांधते उसके कान में झुकते सरगोशी नुमा आवाज में बोला, चुप करे, आप बहुत बुरे हैं। अलीज़ा अपना हिसार उसकी कमर पर मजीद तंग करती अपना चेहरा उसके सीने में छुपाती हुई बोली तो मुकद्दम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। अच्छा, ये तो मुझे मालूम है कि मैं बहुत बुरा हूँ, तुम मुझे काफ़ी बार तफसील से बता चुकी हो, लेकिन यार रोना तो बंद करो, तुम्हारे रोने से हमारे बेबी पर क्या असर पड़ेगा? मुकद्दम उसके आंसू अपने लबों से चुनते हुए बोला तो अलीज़ा ने नासमझी से नज़रें उठाकर मुकद्दम की जानिब देखा, जैसे उसकी बात उसकी समझ में ना आई हो। क्या मतलब? अलीज़ा ने मुकद्दम की तरफ देखते हुए पूछा। वी आर सून टू बी अ पेरेंट्स। मुकद्दम उसके कान में सरगोशी करता उसके गाल को शिद्दत से चूम गया, जबकि अलीज़ा हैरत से मुकद्दम को देखने लगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों की प्यारी सी मम्मा। मुकद्दम मुस्कुराता उसकी पेशानी पर शिद्दत से लब रखता हुआ बोला तो अलीज़ा एकदम से सर ता पैर सुर्ख पड़ी थी, जबकि उसके चेहरे पर आए इन रंगों को देखते मुकद्दम का दिल चाहा था वो उसे कहीं छुपा दे जहाँ उसे मुकद्दम के अलावा कोई ना देख सके। तुम्हारे चेहरे पर आए इन रंगों को देखने के लिए ही पिछले 4 घंटों से तुम्हारे इंतजार में बैठा था, और अब जब तुम्हारे चेहरे पर ये रंग आ ही गए हैं तो जी चाह रहा है कि तुम्हें इतनी दूर ले जाऊं जहां पर ये दुनिया हो ही ना, जहां पर सिर्फ तुम और मैं हो और कोई भी नहीं। मुकद्दम बोलता उसके चेहरे के एक एक नक्श को जा बजा अपना लम्स बख्श रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आज से तुम मुकद्दम मीर अहमद से उसका दिल भी मांगोगी तो वो भी मैं अपने सीने से निकाल कर दे दूंगा। मुकद्दम अलीज़ा के हाथों को लबों से लगाते हुए बोला तो उसके चेहरे पर भी खूबसूरत शर्मीली सी मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि आंखें अभी भी नम थी। इसे अचानक माँ बनने का एहसास बहुत खूबसूरत लगने लगा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रूम का दरवाज़ा नॉक नॉक हुआ है और साथ उन्हें जैद की आवाज़ भी सुनाई दी। आ जाओ, कबाब में हड्डी। मुकद्दम बदमज़ा होता हुआ बोला, क्योंकि वो हड्डी उनके कबाब यानी उनके गोल्डन मोमेंट्स को ख़राब कर चुका था। मुकद्दम की इजाज़त मिलते ही जैद अपनी बत्तीस दांतों की नुमाइश करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। फिर मशकूक नज़रों से मुकद्दम को देखने लगा तो मुकद्दम ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो आप? कैसा महसूस हो रहा है? अब जैद अलीज़ा के करीब आता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम भाई, अब बेहतर फील हो रहा है, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और घर जाकर ज़्यादा सा खाना भी खाना है, फिर दूध पीना है और फिर ये मेडिसिन खानी है और फिर सुकून से सो जाना है। अगर आप चाहे तो मेरे दोस्त से अपनी थोड़ी बहुत खिदमत भी करवा सकती है। जैद आखिर में आंखों में शरारत लिए मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोला। कैसी खिदमत? अलीज़ा ने सवालिया नज़र से जैद की तरफ देखते पूछा। अरे गुड़िया, यही या मुकद्दम तुम्हारा सर दबा दिया करे, टांगे दबा दिया करे, मज़े मज़े के खाने बना कर दिया करे अपने हाथों से। जैद भरपूर शरारत से बोला। पहला तीर अगला
पहले तेरा गला ना दबा दूं। मुकद्दम उसकी गर्दन को दबोचते हुए बोला। अरे ना कर यार, एक बीवी वाला हूँ, अगर तूने मुझे मार दिया तो बेवा हो जाएगी। कुछ तो रहम कर, खुद तो शादी करवा कर बैठ गया। मेरी मेरी तो होने दे, आखिर मुझे भी जिंदगी जीने का हक है यार। जैद भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला तो अलीजा खिलखिलाकर हंसी। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और डिस्चार्ज पेपर्स बनवा कर ला, हमें घर के लिए निकलना है, रात काफ़ी हो गई है। मुकद्दम जैद की गर्दन छोड़ता अलीज़ा के करीब जाए बगैर किसी लिहाज के उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला। वाह भाई वाह, इधर तो डॉक्टर को ही नौकर बनाया हुआ है, कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब बंदा मर जाए। जैद मुकद्दम की तरफ देखता ताली बजाते हुए बोला तो अलीज़ा फिर से हंसी। मुकद्दम बमुश्किल उसके चेहरे से नजरें हटाते जैद की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है फिर चलते हैं हम, खुदा हाफिज। मुकद्दम जैद से बोलता अलीज़ा की जानी मुड़ा और एक झटके से उसे अपने बाजू में उठा चुका था, जबकि अलीज़ा तो उसके इस अमल पर हक्की बक्की ही रह गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे उतारे। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखती हुई बोली। नहीं, मुझे अपनी बीवी और बच्चा बहुत प्यारे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेहनत करके चल कर जाए, क्योंकि उसकी तबीयत आगे ठीक नहीं, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोलता उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उनके पीछे जैद मुंह खोले मुकद्दम को देखता ही रह गया। मैंने तो बस मशवरा दिया था, ये बंदा तो वाकई खिदमत करने बैठ गया। वो भी अभी से पक्का जनमुरीद निकलेगा तू बेटा। जैद बड़बड़ाता बाहर की जानी बढ़ा, क्योंकि अब उसे भी घर पहुंचना था। अफरा अपने कमरे में दाखिल हुई तो जहांज़ीब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने गीले बालों में तौलिया रगड़ता उन्हें खुश कर रहा था। अफरा ने एक नज़र उसे देखा और कमरे में मौजूद बखेरा बखेरा समेटने लगी जो जहांज़ीब ने आते ही फैला दिया था। जहांज़ीब उसकी एक एक हरकत को सामने शीशे से देख रहा था। उसे वो रूठी रूठी बहुत प्यारी लग रही थी, मगर अब उसी चक्कर में उसे रूठा रहने भी तो नहीं दे सकता था। अफरा ने बेड से जहांज़ीब के कपड़े उठाए और उन्हें रखने ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। वो जैसे ही जहांज़ीब के पास से गुजरने लगी, जहांज़ीब ने एक ही झटके से उसकी कलाई थामते उसे अपनी तरफ खींच लिया। अफरा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सीधा उसके चौड़े से सीने से आ लगी थी। नाराज है मेरी मिसेस मुझसे? जहांज़ीब उसके हाथ से अपने कपड़े लेता दूर उछाल चुका था। छोड़े मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी। अफरा अपना आप जहांज़ीब की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। और क्यों नहीं करनी? जहांज़ीब उसकी मज़ाहमत को सिरे से नज़रअंदाज करता उसकी कमर में अपना बाजू हायल करता उसे और नज़दीक करते हुए बोला। बस नहीं करनी, अफरा नाराज़गी से बोली। अपने शौहर से ना बात करने वाली बीवियाँ अच्छी बीवियों वाली लिस्ट में शामिल नहीं होती। जहांज़ीब अफरा की कॉल पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला। और जैसे बीवी पर बेफुजूल गुस्सा करने वाले शौहर तो जैसे अच्छे शौहरों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं ना। अफरा भी उसी के अंदाज में बोली तो जहांज़ीब के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। तुम्हारी गलती थी डार्लिंग, ये अलग बात है कि तुम अभी समझ नहीं रही। जहांज़ीब अफरा के होठ के नीचे मौजूद छोटे से तिल पर अपना अंगूठा रब करते हुए बोला। मेरी गलती होगी, लेकिन आपने सबा के सामने मेरी इंसल्ट की। अफरा के मुंह से असल बात निकली। बिल्कुल गलत, मैंने तुम्हारे इंसल्ट नहीं की, मैंने बस तुम्हें डांटा था। तो क्या तुम्हारे शौहर का इतना भी हक नहीं कि वो अपनी बीवी को कुछ गलत करने पर डांट भी ले? जहांज़ीब अफरा की आंखों में अपनी आंखें गाड़ता हुआ सवाल करने लगा। आपको सारे ही हक है, लेकिन आपको सबा और उन लोगों के सामने मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। अफरा काफ़ी नरम लहजे में बोली। तुम्हें लोगों की फिक्र है कि अपने शौहर की? जहांज़ीब ने उसे घूरा। मुझे उसकी फिक्र है जिसको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अफरा जहांज़ीब की तरफ बोलती देखती उसके हिसार से निकली थी। लेकिन मुझे तो उसकी बहुत फिक्र है जिसे मेरी फिक्र है। जहांज़ीब आंखों में खुमार लिए बोलता उसे दोबारा अपने करीब कर गया। आप बस बातें ना बनाए और छोड़े, मुझे नींद आ रही है। अफरा जहांज़ीब की आंखों में खुमार सा देखती उसके सीने पे दोनों हाथ रखे उसे पीछे करते हुए बोली। भूल जाओ अफरा बीबी, बहुत कर ली नींदें पूरी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। आखिर नाराज़ हो मुझसे, मनाना भी तो पड़ेगा। अपने अंदाज में जहांज़ीब अफरा की तरफ देखता एक आंख दबाकर बोला, जबकि उसके खतरनाक इरादे देखकर अफरा की धड़कनें बेकाबू हुई थी। नहीं तो मैं तो नहीं नाराज़ आपसे, और आपको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और छोड़े मुझे सोना है। अफरा मज़ाहमत करती हुई बोली, मगर जहांज़ीब की पकड़ इतनी भी कमज़ोर न थी जिसे वो आसानी से तोड़ सकती। वो तो उसे हिलाने की भी ताकत नहीं रखती थी। नहीं डार्लिंग, अब तो ये नामुमकिन है, मैं तो तुम्हें मना कर ही रहूँगा, फिर चाहे तुम नाराज़ हो या ना हो। जहांज़ीब झुकते उसे अपनी गोद में उठा चुका था।
لیکن میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، افرا ایک اور بار کوشش کرتے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے تو اب اپنی بیوی کو منانا ہی ہے ہر صورت۔ جہاں زیب اس کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے ہوئے بولا، جبکہ جہاں زیب کی جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے افرا کی جان پر بنی تھی۔ تمہارے بھائی اور بھابھی نے حویلی میں گڈ نیوز دے دی ہے اور اب ہماری باری ہے، آخر ہمیں بھی تو انہیں دادا دادی بنانا ہے۔ جہاں زیب بولتا افرا کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنی شدت لٹانے لگا، جبکہ افرا اس کی شدت پر جہاں زیب کو مضبوطی سے اس کے کندھوں سے تھام چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جہاں زیب نے نرمی سے افرا کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جدا کیے اور تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر افرا کی طرف دیکھنے لگا، جو سرخ چہرہ لیے لمبے لمبے سانس لیتی اس کے ہی سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ جہاں زیب مدھم سا مسکرایا اور دوبارہ اس پر جھکا، جبکہ افرا نے شرمیلی سی مسکراہٹ سے اپنے بازو جہاں زیب کی گردن میں حائل کرتے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ مقدم کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا، کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے اور سب سونے جا چکے تھے۔ گاڑی روکتے ہی مقدم گاڑی سے اترا اور دوسری سائڈ پر آ کر علیزہ کو دوبارہ سے گود میں اٹھا کر حویلی کے اندر بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو کر مقدم بغیر رکے سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف گیا، نرمی سے اسے کرسی پر بیٹھا کر خود سامنے کھڑا ہوا۔ تم چینج کر لو، میں کھانا لاتا ہوں تمہارے لیے، مقدم علیزہ کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکرا دی۔ اسے ڈریسنگ روم میں چھوڑتے مقدم نے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ کچن میں جا کر مقدم نے فریج سے کھانا نکالا اور اسے اوون میں گرم ہونے کے لیے رکھا، پھر واپس آتے فریج کھولی اور کچھ فروٹس نکالے اور ٹرے میں رکھ کر ساتھ چھری رکھی۔ تب تک کھانا بھی گرم ہو چکا تھا۔ کھانا نکال کر ٹرے میں رکھا اور ٹرے اٹھاتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ مقدم کمرے میں داخل ہوا تو علیزہ بھی فریش ہو کر آ چکی تھی اور وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مقدم چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور علیزہ کے سامنے ٹرے رکھ دی۔ کھانے اور فروٹ سے بھری ہوئی ٹرے دیکھ کر علیزہ کی پوری آنکھیں ہی کھل گئی۔ اس نے حیرت سے مقدم کی جانب دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بیگم، یہ سب آپ نے ہی کھانا ہے اور چپ چاپ کھانا ہے، چلو شاباش شروع ہو جاؤ۔ مقدم اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا؟ علیزہ کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا، یہ سن کر یہ کھانے سے بھری ٹرے وہ کھائیں گی، یہ سب میں کھاؤں گی؟ علیزہ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ہاں یہ سب تم کھاؤ گی، اپنی صحت دیکھی ہے، چپ چاپ یہ سب کھاؤ، بلکہ رہنے دو، میں تمہیں خود کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ مقدم ایک دم سے اپنی ٹون بدلتا علیزہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ خدا کا خوف کرے میر، میں انسان ہوں، اتنا سب کیسے کھا لوں گی؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو کہ اس کے لیے چاول پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ میرے ہاتھوں سے کھاؤ گی اور کیسے کھانا ہے، اور اگر تم نے نخرے کیے تو تم جانتی ہو نا کہ مجھے اپنے طریقے سے بھی کھلانا آتا ہے، چلو شاباش اب جلدی سے منہ کھولو۔ مقدم چاولوں سے بھرا چمچ اس کے منہ کے آگے کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے ایک بے بس سی نظر مقدم کی طرف دیکھا، مگر مقدم نے اس کی نظروں کو اگنور کیے چاولوں کا چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو مجبوراً علیزہ کو اپنا منہ کھولنا ہی پڑا۔ گڈ گرل، مقدم اس کے منہ میں چاولوں کا دوسرا چمچ ڈالتے ہوئے بولا، اور ایسے ہی کرتے مقدم نے اسے پوری پلیٹ کھلا دی، جبکہ علیزہ میں اب کچھ اور کھانے کی بالکل بھی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ مقدم کو فروٹ کاٹتے دیکھ کر علیزہ نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کھا لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مقدم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس دھیان سارا سے فروٹس کاٹنے کی طرف تھا۔ ایسے کیسے کافی ہے، آپ بھی کھانا کھائیں، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور دوسری پلیٹ میں مقدم کے لیے چاول نکالنے لگی۔ مقدم نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار بھی کیا تو اس کا انکار کسی کھاتے میں نہیں آنے والا، کیونکہ وہ اتنی بچی تو نہ تھی جو سمجھ نہ پاتی کہ مقدم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ میں کھا تو لوں گا، لیکن ایک شرط پر، اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ تو۔ مقدم نے اپنی شرط آگے رکھی۔ میں؟ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے دوسری کوئی شادی کی ہوئی ہے، میری تو ایک ہی بیوی ہے، مقدم نے اپنے ہی انداز میں جواب دیا۔ آپ کی دوسری بیوی ہو بھی نہیں سکتی، علیزہ بولتے کھسک کر تھوڑا قریب ہوئی اور مقدم کو کھانا کھلانے لگی۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی، اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے شرارت سے بولا، مگر علیزہ کو اس کی یہ شرارت بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تو کر لیں، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں آپ؟ علیزہ اپنے غصے پر قابو پاتی ہوئی بولی، جبکہ جن ہاتھوں سے وہ مقدم کو تھوڑی دیر پہلے بہت آرام سے کھلا رہی تھی وہ ہاتھ تیزی سے چلنے لگے اور اسے دیکھتے مقدم نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میں یہاں پر اپنی پہلی بیوی کی خدمت کر رہا ہوں، اگر یہ ایکسپیرینس اچھا رہا تو مزید۔ ابھی مقدم کچھ بولتا اس سے پہلے ہی علیزہ بول پڑی، چپ کر کھانا کھائیں۔ علیزہ مقدم کے منہ میں غصے سے چاولوں سے بھرا چمچ ڈالتے ہوئے بولی، جو مقدم نے بمشکل نگلا تھا۔
ایک بات بتاؤ بیگم، مقدم کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ جی۔ علیزہ کو لگا اب وہ کوئی سیریس بات کرے گا۔ اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو مقدم نے آنکھوں میں شرارت لیے علیزہ کو چھیڑتے ہوئے پوچھا، تو علیزہ نے نظر اٹھا کر مقدم کی جانب دیکھا۔ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے وہ سمجھ چکی تھی کہ اس وقت اس کے شوہر کے اندر کا شیطان جاگا ہوا ہے، جسے چپ کروانے کا حل صرف اسی کے پاس ہے۔ کر لے، علیزہ مطمئن لہجے میں بولی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ مقدم کو اس کا مطمئن لہجہ کچھ ہضم نہیں ہوا۔ نہیں، علیزہ ابھی بھی اسی انداز میں بولی۔ کیوں؟ مقدم نے وجہ جاننا چاہی۔ کیونکہ جب آپ دوسری شادی کر کے آئیں گے تو میں آپ کو آپ کی چائے میں زہر ملا کر مار دوں گی، پھر میں آپ کی دوسری بیوی بیوہ بن کر خوب انجوائے کریں گے۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یار تم اپنے شوہر کو زہر دو گی؟ مقدم حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ جی ہاں بالکل۔ علیزہ کا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ علیزہ کے جواب پر مقدم بیچارہ تو اسے گھور بھی نہ سکا۔ کیا ہوا پیارے شوہر، دوسری شادی نہیں کرنی کیا؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی ہنستے ہوئے بولی۔ وہاں بیگم تم تو اپنے شوہر کو ٹپکانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہو۔ مقدم علیزہ کے آگے سے پلیٹ سائڈ پر کرتا، فروٹس کی پلیٹ آگے رکھتا، اس کے منہ میں سیب کا پیس ڈالتے ہوئے بولا۔ آپ دوسری شادی کر کے آئے بس؟ علیزہ مقدم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، گویا اس کا مذاق اڑا رہی تھی وہ، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ مقدم دوسری شادی تو کر سکتا ہی نہیں، اور جو اسے تنگ کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا یہ کام بھی الٹا اسی پر پڑ گیا تھا۔ بلکہ زہر دینے والی بات کو سن کر تو مقدم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ علیزہ یہ بات بھی کر سکتی ہے، مگر وہ بھی بیوی تھی اور بیوی تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ مقدم نے اسے گھورا۔ توبہ استغفر اللہ، علیزہ اپنے دونوں کانوں کو باری باری ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، تو اس کی اس حرکت پر مقدم نے اپنی بمشکل ہنسی دبائی۔ بس کر دے، اب مجھے نہیں کھانا، میں آگے ہی فل ہو چکی ہوں۔ علیزہ اپنے آگے سے فروٹ سے بھری پلیٹ کھسکاتے ہوئے بولی۔ بمشکل اس نے 4 سے 5 پیس ہی کھائے تھے اور اس سے اب دوبارہ کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ علیزہ کے بولتے ہی مقدم نے بھی اس سے دوبارہ فورس نہیں کیا اور ٹرے اٹھاتے سائڈ پر رکھی۔ وہ اور پھر میڈیسن کھلائی اور کپڑے چینج کرنے چلا گیا، جبکہ علیزہ سیدھی ہوتی سکون سے لیٹ چکی تھی۔ اسے تھکاوٹ تو بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اپنا جسم بھی تھکن سے چور ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مقدم چینج کر کے آیا تو اس نے دیکھا علیزہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ علیزہ سوئی نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر مقدم مسکرایا، روم کی لائٹس آف کرتا لیمپ آن کی اور دوسری سائڈ پر لیٹ گیا اور کھینچ کر علیزہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ؟ مقدم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ علیزہ مقدم کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرا دیا۔ میر؟ علیزہ نے مقدم کو پکارا۔ جی جانے میر؟ مقدم اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، علیزہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ اسے ایک دم سے وہ سب یاد آ گیا تھا جس سے اس کے دل میں ایک بار پھر سے ڈر بیٹھ گیا تھا، اس لیے اس کے دل میں جو آیا اس نے مقدم سے بول دیا۔ اب لگ رہا ہے ڈر؟ مقدم علیزہ کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، اب تو آپ میرے پاس ہیں نا، اب مجھے ڈر کیوں لگے گا؟ علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا اور مقدم کے گرد اپنا حصار بنایا تو مقدم گہرا مسکرایا۔ چلو اب سو جاؤ، اپنے دماغ سے تمام باتیں نکال دو، صرف اپنے میر کے بارے میں سوچو، اس دنیا میں آنے والے اپنے بیبی کے بارے میں سوچو۔ مقدم اس کا ماتھا شدت سے چومتا ہوا بولا تو علیزہ مسکرا دی اور آنکھیں موند گئی، جبکہ مقدم علیزہ کو دیکھتے دلکشی سے مسکرایا، دوبارہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے کسی تکیے کی طرح خود میں بھیجتے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ تھا جو اسے صبح کرنا تھا، اور جس طریقے سے کرنا تھا وہ طریقہ مقدم میر احمد بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ آنکھوں میں پڑتی روشنی کی وجہ سے مقدم کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ کمرے میں چاروں طرف صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مقدم نے اپنی دوسری جانب دیکھا تو وہاں پر علیزہ موجود نہیں تھی۔ مقدم اٹھ کر بیٹھا اور کمرے کے چاروں طرف نظریں گھمانے لگا، مگر علیزہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اسے دیکھنے کی غرض سے ابھی وہ اٹھنے ہی لگا تھا جب علیزہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، اور اس وقت وہ بالکل فریش لگ رہی تھی، یعنی وہ ابھی تیار ہو کر آئی تھی۔ آپ اٹھ گئے؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مقدم بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا علیزہ کے قریب آیا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال برش کر رہی تھی۔ مجھے اٹھایا نہیں تم نے؟ مقدم اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا، بازو اس کے پیٹ پر باندھتا، اس کی نم بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ آپ سو رہے تھے نا، اس لیے؟ علیزہ اس کے اچانک اتنے قریب آنے پر گھبرا کر بولی۔ اچھا تو اٹھا دیتی؟ مقدم گہرا سانس لیتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بولا۔
بیجان کا پیغام آیا ہے، وہ نیچے انتظار کر رہی ہے ہمارا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں کو برداشت کرتی علیزہ فوراً سے بولی، تو کیا آپ کو اکیلے جانے کا خیال تھا؟ آپ کا اکیلے جانے کا خیال تھا بیگم؟ مقدم اسے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں تو بس آپ کو اٹھانے ہی والی تھی، لیکن آپ پہلے ہی اٹھ گئے۔ علیزہ نے معصومیت سے سچ بتایا۔ مقدم نے آہستہ سے علیزہ کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے کمر سے تھامتے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اس کی اچانک ایسی حرکت پر علیزہ نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ تمہیں تو نیند میں بھی خود سے دور جاتے دیکھنا منظور نہیں مجھے بیگم۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دور جاؤ اور میں سکون کی نیند سوتا رہوں؟ مقدم علیزہ کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے دور کب گئی ہوں؟ میں تو بس تیار ہو رہی تھی۔ علیزہ کو مقدم کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ علیزہ کی بات سن کر مقدم مسکرایا۔ شاید وہ واقعی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ مقدم کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ آئندہ جب تک میں نہ اٹھوں تب تک تم کہیں نہیں جاؤ گی، مقدم اس کے سرخی مائل گال سہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن میں تو کہیں بھی نہیں گئی۔ علیزہ حیرت سے ہوئی مقدم کی بات سن رہی تھی۔ ابھی مقدم کچھ بولتا کمرے کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ کون؟ مقدم اپنی جگہ سے بغیر ہلے پوچھا۔ وہ صاحب جی، بیجان آپ کو ناشتے پر بلا رہی ہے، باہر سے ملازمہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں، مقدم دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور دوبارہ علیزہ کی طرف متوجہ ہوا جو دانتوں تلے اپنے ہونٹ کچل رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ مقدم انگوٹھے سے اس کے لب دانتوں سے آزاد کرواتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ علیزہ اپنی نظریں نیچے کیے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مقدم نے اس کے ماتھے کو چیک کرتے ہوئے پوچھا تو علیزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کیا بات ہے میری جان؟ مقدم تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بے حد پیار سے بولا۔ وہ سب کے سامنے جانے میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ علیزہ اپنا سرخ چہرہ دوبارہ جھکاتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرایا۔ اس کی بات وہ سمجھ چکا تھا۔ اس میں شرم کیسی بیگم؟ اس میں تو خوش ہونے والی بات ہے۔ آفٹر آل اس حویلی کا وارث دینے والی ہو تم، اور یہ اللہ کا دیا بہترین تحفہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے اولاد نہیں رکھا، ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس میں شرم کیسی میری جان؟ مقدم اسے بے حد پیار سے سمجھاتا اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھ گیا تو علیزہ مسکرا دی، تم بیٹھو ادھر ہی اور ہلنا نہیں یہاں سے، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ مقدم علیزہ کو بیڈ پر بٹھاتا نرم لہجے میں بولتا فریش ہونے چلا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس اسٹوری میں اور کیا ہونا باقی ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔